पूरे सामान लेके आया, पूरे सामान लेके आया। अभी चल रहे हैं ना, परमानेंटली चल रहे हैं क्या? वापस नहीं आता मैडम, कब तक ऐसा रहता? इसलिए वो हिंदी नहीं आता। कितने साल से नहीं है, लेकिन करीब में मदरसा रहने से बच्चे दिल लगा के पढ़ते नहीं। वो बाहर रहते तो थोड़ा घर का आना जाना होता है, तो दिल लगा के पढ़ते। गवर्नमेंट से ट्रेन है, लगाता है एक दिन पूरा स्टेट का। आधार कार्ड है, आधार कार्ड ఎవరు వస్తున్నారు? మీకు ఆల్రెడీ ఒక లిస్ట్ ఉంది. లిస్ట్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఈ లిస్టే మళ్ళీ చూసుకుంటాం, క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఈ లిస్టే పిక్ చేసుకుంటున్నారా లేకపోతే మళ్ళీ రైల్వే స్విచ్ మాత్రం లేదు మేడం. ఇటు ప్రింట్ కలెక్టెడ్ పంపించారు. ఇది వాళ్ళు ప్రతి బస్సు తీసుకొస్తున్నారు. వాళ్ళు డిజిటల్ టెస్ట్గా సంతకం పెట్టి మళ్ళీ ఆ బస్సులో ఎవరెవరు కన్ఫర్మ్ లిస్ట్. దిస్ ఇస్ కన్ఫర్మ్. దీనికి మైనర్ డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ టెంటేటివ్ లిస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారో ప్రిపేర్ చేయండి. మ్యాక్సిమం ఇందులో అప్సెట్ ఇస్తారు. లాస్ట్ మంత్ బస్సు ఎక్కకపోవచ్చు కదా. ఇది మనం రైల్వే రమ్మనండి. సో మనం ఫైనల్గా ఈ లిస్ట్ పంపించిన డేటాబేస్ అందులో టెస్ట్లా కన్ఫర్మ్ చేసి వచ్చిన లిస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటి అంతపడి ఫస్ట్ ఉండేది ఈరోజు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి ప్రతి ఒక్కరిని ఆఫ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నా పాకెట్ వాళ్ళు మేడం. మండలాలు ఉన్నాడు ఎక్కువ మంది. నాకు వచ్చేవాళ్ళు ఒక 100 మెంబర్స్ యాడ్ అవుతున్నారు. ఈ జార్ఖండ్ వాళ్ళంతా బాగా వర్క్ ఎక్కువ అట్టలేదు. ఈరోజు మేము ఇక్కడికి వెళ్ళాం కదా, మరి కరెక్టే కదండి. ఇప్పుడు మనము మండల్ వైజ్ ఎక్కించేస్తుంటే అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్లో ఆగినప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసి దిగిపోతున్నారు. రిసెప్షన్ పెట్టుకోవాలి. ఈ జిల్లా వాళ్ళు జిల్లా రిసెప్షన్ పెట్టుకుని వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే మాకు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చిన వాళ్ళని పంపిస్తూ మనం ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఎవరిని పంపిస్తున్నాం, ఏ బోగిలో పంపిస్తున్నాం అనేది ఇక్కడికి వచ్చినా మనం నోట్ చేస్తాం. ఓకే తెల్లవారు బోగిలో ఎంతవరకు సీటింగ్ అనేది అలాట్ చేస్తాం. ఇంకా ఉంటే ఎస్టీ కూడా అలాట్ చేస్తాం. ఎస్టీ సీటింగ్ నెంబర్ అంతా రాసుకుంటాం. నాకు జేసీబీ ఈరోజు బ్రీఫ్ నన్ను ఇచ్చాము, నిలబడి ఇచ్చాం. లేట్ అవర్స్ రావడం వల్ల నెంబర్ మీద మేనేజ్ చేస్తాం. వారిగా బస్సు ఇక్కడ మండలం పేరు, భోగి నెంబర్ అని రాస్తాం. అందువల్ల మనకి ఎవరెవరు ఇవ్వబోయిందో అది ఆల్రెడీ ఏంటంటే దిగాల్సిన స్టాఫ్లన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకి వారిగా ఉంటే వాళ్ళకి ఈజీ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రిసీవింగ్ పాయింట్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే పెట్టిన మండలం రాగానే ఏ భోగికి అదే మండలం జస్ట్ వాళ్ళు వస్తారు, ఆ లిస్ట్ ప్రకారం ఆ కోచ్ పంపిస్తారు. మామూలుగా కోచ్ బాగా లేట్ అవర్స్లో ఈరోజు 7కి ఇచ్చారు. మామూలుగా ఈరోజు ఇచ్చారు 7కి.
ఎందుకంటే అది మనం అక్కడ చెప్పుకున్నట్టు ఎవరన్నా మిస్ప్లాన్ అయితే రెడ్ బోర్డ్ ఉందంటే లాస్ట్ వీక్ అంతే झारखंड के रहने वाले हैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के। हम लोग यहाँ पे बाहर में काम करने आए थे फरवरी महीना में। 1 महीना काम किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में फिर कुछ दिन के बाद हम लोग का काम ही बंद हो गया और काम भी नहीं मिल रहा था और घर जाने के लिए भी सोच रहे तो घर जाने के लिए भी कोई उपाय या रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद झारखंड सरकार ने एक एप्लीकेशन भेजा हम लोग के पास कि तुम लोग इसमें फार्म भरो, तुम्हारे लिए गाड़ी भेजा जाएगा। हम लोगों ने वो सब चीज़ का कर दिया था, फार्म वार्म भर दिया था। उतने दिन से लेकर आज तक तो सरकार का जहाँ तक कदम रहा हम लोग तक तो पहुँचा अभी तक। और हम लोग वैसे हम लोग का और कोई उपाय नहीं मिल रहा था, तो आज पता चला कि यहाँ से स्पेशल ट्रेन जा रही है। हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो हमारे बिहार वाले लोग हमें यहाँ तक लाए और पुलिस प्रशासन सब कागज पत्र ओके करके हम लोग को घर भेजा जा रहा है। इस बात का हम लोग को खुशी है, बहुत अच्छी बात है। और हम अपने झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन का थैंक यू कहना चाहूँगा और यहाँ का प्रशासन, आंध्र प्रदेश का प्रशासन का भी थैंक यू करना चाहूँगा जो हम लोग को इतनी दूर से फंसे हुए लोग को अपने गाड़ी से हम लोग को उपाय करके भेज रहे हैं। आनंद कुमार है, मैं स्टेट झारखंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। सो हम लोग यहाँ पे काम करने आए हुए थे आंध्र प्रदेश मोहन स्पेंटेक्स यूनिट 4 कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने आए थे। सो हम लोग को जो भी परफॉर्मेंस मिला फर्स्ट टाइम तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग को, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट उसके बाद जैसे जैसे हम लोग को दिन चलता गया जाता गया उस हिसाब से हम लोग का रिएक्शन थोड़ा सा वहाँ से अच्छा नहीं मिला और जस्ट लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से काम लगने की वजह से भी नहीं लगने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई। ये हम लोग भी समझ सक रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं एक दूसरे के बारे में तो बहुत सारी अफसोस हो रही है क्योंकि कितने लोग पैदल जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं वैसे जा रहे हैं। हम लोग भी डिसाइड किए थे लॉकडाउन लगा है हम लोग को भी जाना चाहिए या किसी भी हाल में जाना चाहिए तो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग निकले नहीं। हम लोग जो भी गवर्नमेंट का रूल है उस रूल को फॉलो करने के लिए सोचे। फिर से हम लोग सोचे कि नहीं अब फिर ऐसे ही करते रह जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग ना घर जा पाएंगे ना इधर आ पाएंगे। सो फिर हम लोग प्लान बनाए, फिर भी प्लान हम लोग फिर कैंसिल कर दिए, फिर प्लान बनाए, फिर कैंसिल कर 2-3 बार प्लान बनाए कैंसिल किए। फिर तीसरा चौथा बार डिस्कस हुआ, GR ऑफिस जो भी ऑफिस होता है गवर्नमेंट के थ्रू होता है उसके थ्रू से हम लोग एप्लीकेशन लगाए और उसके बारे में बहुत सारा हेल्प भी मिला, नहीं भी मिला। तो वहाँ से हम लोग बहुत सारी मुसीबतें झेलना पड़ा और वहाँ से जो भी हम लोग अभी आए हैं तो सब पैदल ही आए हैं क्योंकि हम लोग के गवर्नमेंट बस अलाउ की थी। बट जो भी वहाँ से ऑफिस के थ्रू बस दिया जाता है उस बस को हम लोग को लाभ नहीं मिला और ना ही बस भेजा गया। बोला गया था बस भेजने के लिए बट भेजा नहीं गया। और हम लोग को ये भी हम लोग अपना से ये भी सोचे थे कि अपना से बस करके जाएंगे तो भी वो अलाउड नहीं कर रहा था कि नहीं तुम लोग अपना से भी जा सकते हो पैसा लगा करके। हम लोग हालांकि पैसा लगा करके जाना चाहते थे बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं करने दिया। हम लोग को ज़बरदस्ती एक टाइप पे कर रहा था और कभी छोड़ भी रहा था। तो हम लोग अपना मूड बनाए, एक यूनिट बनाए अपना। हम लोग कैप्टन जो भी सिक्योरिटी गार्ड है हम लोग ऑल टू ऑल सिक्योरिटी गार्ड है। 13% हम लोग झारखंड के भी हैं और हम लोग ऑल टू ऑल हम लोग सिक्योरिटी गार्ड है। वो उसके थ्रू भी वहाँ से हम लोग आए, पैदल तो आए, वो भी नहीं अभी आने दिया जा रहा था। सारा ऐसा लगता है मुझे कि प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, नहीं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम हो रही है तो अगला पर्सन की भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी तकलीफ हो रहा है, लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कौन सा स्टेट का कौन कहाँ फंसा हुआ है, कौन स्टेट के कहाँ है, ये ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक कि हम लोग के स्टेट से भी पता चल रहा है कि वहाँ के हम लोग के भी स्टेट बोल रहे हैं कि नहीं कहाँ कहाँ आदमी अपना ही स्टेट का आदमी खुद पता नहीं चल रहा है। तो गवर्नमेंट के ध्यान देना चाहिए कि किसका कौन सा स्टेट का कहाँ कहाँ आदमी है, ये ध्यान में रखते हुए इस काम को करें। क्योंकि ये कोरोना वायरस है ना ही कि ये कोई मजाक है, ये बीमारी है। इस बीमारी के कहा नहीं जा सकता है कब क्या हो सकता है, कब क्या हो सकता है। तो मेरा कहना यही है और मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से भी कि वो जहाँ जहाँ जिनके लड़के फंसे हुए हैं, काम करने बाहर आए हैं, 2 वक्त की रोटी खाने आए हैं, तो उनको सही सलामत कम से कम उनके घर तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। नहीं कि वो मजबूरी में जान दे दे, आत्महत्या कर दें। कितने लोग मर जा रहे हैं, कितने लोग पैदल आ रहे हैं। अभी जैसे कि ट्रेन से आ रहे थे, अभी जो आ रहे थे पैदल भी आ रहे थे, लोग साइकिल से भी आ रहे थे, अभी न्यू साइकिल भी आई है। तो हमको लगता है कि ये हो रहा है क्योंकि हम निकले नहीं थे तो हम तो सिर्फ मोबाइल पर देखते थे, न्यूज़ देखते थे, लेकिन रियलिटी देखने को मिल रही है ये चीज़।
कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग इस टाइप पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरा इंडिया स्वस्थ है, इंडिया को स्वस्थ रखना जरूरी है। अपना रूल को फॉलो करते हुए ही अपना ध्यान दे करके ही लोग को पहुंचाने का प्रयास करें, ना कि किसी भी तरह से नहीं। जो भी रूल है गवर्नमेंट का रूल के ही हिसाब से भेजा जाए, लेकिन भेजा जाए, ना कि दूसरे को तसल्ली ना दिया जाए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि तसल्ली दिया जाता है, जैसे में हम लोग को भी अभी तसल्ली दिया गया था, लेकिन हम लोग जबरदस्ती किए तो हम लोग इस ट्रेन तक पहुंच पाए और हम लोग घर जा पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग को भी नहीं ये किया जा सकता था, हम लोग को भी वहाँ फंसा करके रख के फिर अगले दिन से काम करवाया जा सकता था। लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं सोचे। हम लोग फैमिली रहेगा, ज़िंदगी रहेगा तो बहुत सारी काम हैं, दोबारा इंसान काम कर सकता है, तो ज़िंदगी रहेगी तब तो पहले। इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जहाँ तक कि बने वो साधन दे और उसको अच्छा तरीक़ा से ले जा करके गवर्नमेंट घर तक पहुँचाए। और इस तब मैं अपने प्रशासन को भी मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन से कहीं कहीं हेल्प नहीं मिल पाता है, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ प्रशासन कृपया मेरे देश के मेरे सुरक्षा कर्मी हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट ये पब्लिक को ध्यान देना चाहिए किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। नहीं कि वो अगर प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए। एक पर्सन अगर प्रॉब्लम फंसा है तो उसको छोड़ दिया जाए, अदर आदमी को देखा जाए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रशासन है ऑलरेडी और पूरा इंडिया के लिए है, मेरा पूरा इंडिया के लिए स्वस्थ रखने के लिए और सुरक्षाकर्मी करने के लिए है। तो यही कहना है कि वो ध्यान दें, जो भी है ध्यान दें। मेरा कहना ये है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं और इस चीज़ को जूझ रहे हैं। तो वही है कि एक दूसरे को इंसान देखता है तो रोता है। हम लोग को भी ऐसा महसूस हुआ क्योंकि हम लोग भी आ रहे तो हम लोग को भी दिल कर रहा है वैसा कि इंसान एक दूसरे के बारे में देख करके जब रो सकता है तो खुद के ऊपर पड़ रहा है तो क्या महसूस हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ से भी बने वहाँ से गवर्नमेंट भेज और जल्दी ही जल्दी भेज, क्योंकि घर के परिवार ना वो क्या कर रहे हैं, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने लोग तड़प रहे हैं। तो उनके लिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, या दुनिया के हिसाब से भी ये चीज़ ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, थाना प्रशासन को हेल्प करना चाहिए, पंचायत को भी हेल्प करना चाहिए, ऑलरेडी सभी को हेल्प करना चाहिए। नहीं तो फिर ये रूल को खिलाफ हो जाएगा, और रूल खिलाफ होगा तो फिर क्या पर्सन करेगा, क्या फिर रूल को फॉलो करेगा। जब गवर्नमेंट को बात नहीं मान पाएगा, गवर्नमेंट अगर सुविधा दे रही है, अगर उन्हें मिलेगा तो लोग रूल को तोड़ेगा ही, और रूल को तोड़ेगा अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है सॉल्व करें, गुजारिश है गवर्नमेंट से कि सॉल्व करें। हाँ, ಇದು ಸರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ మర్చిపోవడం జరిగే పరిస్థితులు
అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నావు డల్గా కూర్చున్నావు రేపు చూడవు हमको मिले खिचड़ा एक नंबर गोड़ा तीन है चल 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 ఎస్టెనోరు అన్నబాబు వాళ్ళందరూ ఆడుకుంటున్నారు బ్యాచ్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టం నేను చెప్తా వస్తే చేసుకుంటాను చెప్తా थोड़ा दूर रहना है थोड़ा दूर आप लोग को सबको खाना वीआरओ గారు మీ లిస్ట్ తీసుకొచ్చేయండి అవును సార్ అక్కడ ఫేమస్ ఇల్లు అక్కడ తమ మేడం గారు తమ తీసుకుంటా కూర్చో కరడా సరదాగా అన్నా నన్ను కూడా సీరియస్ కానీ ఇవాళ రేట్ వచ్చేసి 300 దిగి ఇక్కడ లైన్లో పెట్టప్పా ఇక్కడ లైన్లో నిలబెట్టండి వాళ్ళని ఈ వ్యాన్లో దిగిన వాళ్ళని లైన్లో నిలబెట్టుకోండి